Next topic of coordinate geometry is section formula. Suppose we have 2 points A and B. Coordinates of A are x1, y1 and B is x2, y2. Suppose we have a point P with coordinates x, y. And suppose P divides AB in the ratio m/n. Suppose this ratio is m/n. मतलब ए बी का एक सर्टेन लेंथ है. कोई भी एक पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं ए बी पर, तो वो उसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है. तो उस रेशियो को हम लोग मान ले रहे हैं m/n. Now we have to find the coordinates of x and y if m and n are given, and you also know the coordinates of a and b. फिगर में देख लो, क्लियर है आपका. ये x1 है, देखो x1 है, यह लेंथ y1 है, यह x है, और ये लेंथ क्या है y. ऐसे ये x2 और y2. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. चलो इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. ए, पी और बी से हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं. सिमिलरली इस परपेंडिकुलर पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. Suppose this is R and this is S. Now look at triangle PBR and triangle APS. अब ये लेंथ यहां से यहां तक x है. ये लेंथ टोटल क्या है हमारा x, और ये लेंथ है x1. तो ये लेंथ हमारा जो बच रहा है ये होगा x माइनस x1, यानी कि AS इज ऑल्सो x माइनस x1. सिमिलरली हमारा जो PS लेंथ है, ये जो PS लेंथ है, ये हमारा क्या है, टोटल y माइनस y1. PS लेंथ होगा हमारा y माइनस y1. PR टोटल लेंथ है x2 और यहां से यहां तक है x. तो PR इज x2 माइनस x. एंड BR, ये लेंथ टोटल है y2 और ये लेंथ हमारा क्या है y. दिस इज y2 माइनस y. नाउ वी कैन इजिली सी दैट ट्राइंगल PBR इज सिमिलर टू ट्राइंगल APS. Triangle APS is similar to triangle PBR. In both the triangles, one angle is right angle. This angle is equal to this angle. So both triangles are similar, hence their corresponding sides are proportional. Therefore, AP by BP is equal to AS by PR is equal to PS by BR. AP by BP is m/n. AS is x minus x1. PR is x2 minus x. PS is y minus y1. And BR is y2 minus y. Now we equate first term, first part and second term part, and first part and last part separately. Therefore m by n is equal to x minus x1 by x2 minus x. Cross multiplication, m into x2 minus m into x is equal to n into x minus n x1. That implies mx2 माइनस एन एक्स वन इधर आ जा रहा है, तो प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एन एक्स को आप लोग आरएचएस में ले आओ, माइनस प्लस हो गया
plus nx. That implies mx2 plus nx1. We are taking x common, we have m plus n. तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा, mx2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m plus n. फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को भी इक्वल हम लोग करते हैं. m by n y minus y1 by y2 minus 1. m into y2 cross multiply minus m into y is equal to n into y minus n into y1. my2 minus ny1 को इधर ले आओ RHS में, माइनस my RHS में आया, प्लस हो गया और प्लस ny. my2 plus ny1 is equal to, taking m common, sorry y common, we have m plus n. That implies y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. This formula is known as सेक्शन फॉर्मूला. एक बार हम लोग इसको लर्न करना भी देख लेते हैं, कैसे इसको हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं. सपोज वी हैव 2 points A and B. Coordinates of A is x1 y1, B is x2 y2. Suppose we have a point P with coordinates xy and P divides AB in the ratio m ratio n. Now x is equal to, by section formula, x is equal to m into x2 plus n into x1 divided by m plus n. Y is equal to my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. लर्न करने का तरीका आप लोग कर लेना. देखो, अगर हम लोग m इसको ले रहे हैं तो आपका जो x2 है ये इधर आ रहा है. जब भी x का वैल्यू निकाला जा रहा है, दोनों हमारा x आ रहा है, y वाले में y लिखा जा रहा है. m x2 हो रहा है और n ले रहे हैं तो हमारा ये x1 हो रहा है, डिवाइडेड बाय m प्लस n. y के लिए भी क्या करना है, m, और एक इधर का ले रहे हैं तो एक इधर का ले रहे हैं. m y2 और n ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, y1. यही हमारा फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला. हम लोग इस पर बेस्ड. The question is, find the coordinates of the point which divides the line segment joining -1, 3 and 4, -7 internally in the ratio 3:4. We have 2 points. Let the points be A and B. Let the coordinates of A -1, 3 and B 4, -7, and let required point be P x, y. It divides the line segment in the ratio 3:4. So let required point be P x, y. We have to find the coordinates of P. Now we will apply section formula. We know that x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. Y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. Now x is equal to 3 into फर्स्ट पार्ट इज x. देखो यहाँ दो पार्ट है आपका, जो पहला पार्ट एब्सिसा है और सेकंड ऑर्डिनेट. एब्सिसा x हुआ, ये y हुआ. तो जब x का वैल्यू निकालना तो x का वैल्यू लोगे. 3 into 4 प्लस 4 into -1 बाय m प्लस n. m और n है ये 3 और 4, तो बाय 3 प्लस 4. 3 4 से 12, 4 minus 1 is 4 into -1 -4, 3 plus 4 7 is equal to 8/7. y, जब y निकालना है तो देखो y वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट. 3 into -7 प्लस 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 plus 4. 3 7 का -21, 4 3 का 12 by 3 plus 4 7 is equal to -21 plus 12 -9/7. तो आप x और y निकाल कर नहीं छोड़ना, आपको पॉइंट बताया जा रहा है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. इसलिए आप लोग क्या करेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा x, y के फॉर्म में रहेगा तो 8/7, -9/7.
आप इसको भी लिखेंगे, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट व्हेन P इज द मिड पॉइंट। We have 2 points A and B, coordinates x1, y1, x2, y2, and we have a point P such that P is the midpoint of AB. Now, how to find the coordinates of P? Now, apply distance section formula here. X is equal to mx2 plus mx1 by m plus n. Now, here we have this is m and n. Also, m is equal to n. Both part are equal because P is the midpoint. So we can write mx2 in place of n. We can write mx1 by m plus m. Taking m common, we have x2 plus x1. M plus m is 2m. Is equal to x1 plus x2 by 2. Similarly, we can find y is equal to y1 plus y2 divided by 2. सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। चलो इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 2,5 ए का और इसका है 3,7 एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हियर। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 5 बाई 2। y इज इक्वल टू 5 plus 7 divided by 12, 12 by 2, 6। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या जा रहा है इसका, 5 by 2, 6। तो जब भी मिड पॉइंट आपको निकालना रहेगा, आप सिंपल x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, x1 और x2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। y निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है बिल्कुल आपका मिड पॉइंट के लिए। नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। Suppose you have a triangle ABC, vertices are A, B and C, and coordinates of A is x1, y1, B, x2, y2 and C, x3, y3. Now we have to find the, and suppose G is the centroid, x comma y. We have to find the coordinates of G. Now what is a centroid? First of all, we will define a median. The line segment joining the midpoint, suppose this point is the midpoint of this side. The line segment joining the midpoint of one side of a triangle to the opposite vertex. Midpoint को opposite vertex से मिलाने वाला लाइन हमारे क्या कहलाता है, median कहलाता है। Now medians of a triangle are concurrent, and the point of concurrence of medians of a triangle is known as centroid. Also, centroid divides the median in the ratio 2:1। यह रेशियो हमेशा क्या रहता है, 2:1। Now suppose we draw a median AD. It is clear that AD will pass through G because centroid lie on median. It always lies on median. Now what will be the coordinates of D? Since D is the midpoint of AC, अभी जस्ट आपको बताया गया था मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये D मिड पॉइंट, हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑल्सो दिस रेशियो इज 2:1। अब आप सिर्फ AD के लेंथ को देखो, सिर्फ इस लाइन को देखो, AD A और D आपको दिख रहा है, यहाँ पर G है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, और आपको 2 और 1 मालूम है ये रेशियो। हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n। 2 कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 इंटू x1 हो गया x1
प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। सिमिलरली हम लोग y का भी कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो जब भी आपको सेंट्रोइड निकालना रहेगा तो सेंट्रोइड हमारा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है सेंट्रोइड।